Good morning, students. Now, today I am going to teach you a satire, right? The Tale of Melon City. It's a CBSE class 11th, right? A long poem composed by Vikram Seth. The Tale of Melon City is a humorous poem, and it takes fun of a crazy king who claimed to be just and peace-loving. The poem shows the stupidity of the king and his kingdom, right? The poem highlights the funny pitfalls of the whole system of governance in a state where custom gets top priority. The ruler is a despot and the ignorant people are docile, right? Let's start the summary of the poem. A king ruled over a city. He was just a just king, and was always cool. He ordered that a triumphal arch should be built across the major thoroughfare of his kingdom to show the victory of the king, right? So he ordered to construct an ark, right? The workmen built the ark as desired by the king, and the ark was constructed, right? But when the king rode through that ark, his crown hit against it and was knocked down. At once a frown appeared on the calm face of the king. He felt disgraced. वहाँ का जो राजा था मेलन सिटी का, तो उसने ऑर्डर किया कि उसकी इतनी जो उसने जीत हासिल की, इतना गौरव हासिल किया, उसके लिए एक आर्क बनाया जाए, राइट? एक जो है दरवाजा बनाया जाए जो उसकी जीतों को दिखाएगा, मेहराब दा दरवाजा, जो उसकी जीत को, जो उसने इतनी विक्ट्री हासिल की वो दिखाएगा. वर्कमैन लोगों ने उसको बनाया, कंप्लीट किया. लेकिन जब किंग वहां गया फर्स्ट टाइम, राइट, तो जब पहुंचा वहां पर तो उसका क्राउन उस आर्क से टकराया और क्राउन गिर गया. तो वो बहुत गुस्से में हो गया और ये उसको डिसग्रेस फील हुआ. नाउ ही बिकेम फ्यूरी and he ordered the chief of the builders to be hanged. He wanted to punish somebody for it who was responsible for it. So he ordered the chief of the builders to be hanged. The rope and the gallows were arranged for the hanging. But when the chief of the builders was being led there, he cried out as he passed by the king, "O king, it was the workmen's fault, not mine." The workmen said in self-defense that the bricks were defective, not identical in size. The king then sent for the masons, who trembled with fear, and he shifted the masons. They shifted the blame to the architect. The king ordered the architect to be hanged. The architect then reminded the king that he himself had seen and approved the plan. Now the king himself was concerned. He stood confused. तो अब फ्रोन में गुस्से में वो पनिश करना चाह रहा था किसी न किसी को कि किसकी गलती है. उसने जो है बुलाया तुरंत चीफ बिल्डर्स को. उसने कहा कि तुम्हारी गलती, उसको फांसी की सजा सुना दी. चीफ बिल्डर्स जब लाया गया, रोप लाई गई, नोज लाया गया, फांसी का फंदा वो सेट किया गया. तो जब चीफ बिल्डर वहां से गुजर रहा तो उसने कहा, सर, ओ किंग, इट वॉज नॉट माइन, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक. ये मेरी गलती नहीं है. ये गलती तो जो है जिन लोगों ने बनाया है वर्कमैन, उनकी गलती है. वर्कमैन राजा ने कहा वर्कमैन को हैंग कर दिया जाए. वर्कमैन लोग जब आए तो उन्होंने अपने जो है डिफेंस में बोला कि ये जो है जो ब्रिक्स आई थी वो डिफेक्टिव थी. जब मैसन्स को लोग लेकर के आया गया, जिन लोगों ने ब्रिक्स बनाई थी, डिजाइन किया था, तो उन लोगों ने सीधे कहा कि आर्किटेक्ट की गलती है. और आर्किटेक्ट आया तो उसने कहा कि राजा सर, जो है राजा साहब, ये तो प्लान आपने ही देखा था और जो है इसको कंफर्म किया था. इसका मतलब अब राजा की गलती. अब राजा कंफ्यूज हो गया कि क्या उसको खुद को फांसी में लटक जाना चाहिए. तो ही वॉज कंफ्यूज्ड. उसने थोड़ा पॉज लिया और मिनिस्टर से डिस्कस किया, राइट. He sought the advice of the wisest man in the state, right? The wisest man was too old to see or walk. His voice was broken.
He suggested that the ark itself being the real culprit. वाइजमैन आया, वो बहुत ओल्ड था, वो देख भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, तो उसने कहा एक्चुअल में आर्क ही जो है कल्प्रिट है, अपराधी है, इस आर्क को ही फांसी दे दी जाए। तैयारी हुई उस आर्क को फांसी देने के लिए, बट देयर वर सम मिनिस्टर्स हु सेड दैट द आर्क हैड टच्ड योर क्राउन, आर्क ने आपकी क्राउन को टच किया, सो दैट इट माइट नॉट बी हैंग्ड, इसको हैंग नहीं किया जा सकता, ये तो पायस हो गई है, राइट। अब बड़ी दिक्कत, द आर्क वॉज टेकन टू द गैलरी बट जस्ट देन अ काउंसलर सबमिटेड दैट द आर्क हैड जस्ट टच द हेड ऑफ हिज मैजेस्टी रिस्पेक्टफुली, so it would be shameful to hang a thing that had touched the king's head. By then the crowd had become restless. Crowd wanted to see hanging. Crowd चिल्लाने लगी कि लटकाओ लटकाओ, ये तो गलत बात है, गलती हुई है, देखा जाए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। They had started grumbling because they had gathered there to see the hanging. On seeing the mood of the crowd, the king trembled in fear. He said that the finger points related to guilt could be postponed, but someone had to be hanged immediately. वो क्राउड को देखते हुए, भड़कती हुई क्राउड को देखकर राजा थोड़ा डरा, फियर में हुआ, क्योंकि ल्यूसिड और जो है जस्ट कहा जा रहा था, उसको न्यायप्रिय कहा जा रहा था। उसने तुरंत कहा कि जो है बहुत जल्द किसी न किसी को इस गलती के लटकाया जरूर जाएगा, जो है सजा जरूर दी जाएगी। So the nose was set up a little high. देखा गया नोज थोड़ा हाई सेट था। किंग ने ऑर्डर कर दिया, वन बाय वन केम एंड चेक द पीपल हु आर अवेलेबल देयर, राइट, टू बी हैंग, हु सेट टू द परफेक्टली सेट राइट इनटू द नोज, जो उस नोज जो फांसी का फंदा है NOOSE, उसमें जो फिट बैठे उसको लटका दिया जाए। और नोज जो था वो हाई था, और इतना लंबा व्यक्ति वहां कोई टॉल नहीं था। Each man was measured one after the other. There was only one man that was tall enough to fit the nose, and that was the king himself. At last, king खुद केवल इतना लंबा था जो उस नोज तक पहुंच पाया, फिटेड हो पाया, and that was the king himself. Therefore, the king was hanged by his own orders. इसलिए राजा को ही लटका दिया गया उसके खुद के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। अब डेथ हो गई, राइट। The ministers now faced another problem. Crowd ने बड़ा live long king, right, justful king, placid king, right, उसके बड़े जयकारे लगाए, लेकिन राजा तो मर गया। तो another problem that the state must have a king urgently. स्टेट में किंग को होना चाहिए anyhow. The messengers heralded the royal proclamation. उनको राजसी डिक्लेरेशन हुआ, और वहां की एक राजसी घोषणा थी कि नेक्स्ट किंग को जब कोई इस तरह कंडीशन हुई तो राजा कैसे चुना जाएगा, कि जो भी व्यक्ति जो है उस नगर के गेट से, उस सिटी के गेट से फर्स्ट निकलेगा, राइट, ही हैड द अथॉरिटी टू डिक्लेयर समवन अ किंग, वो उसके पास अथॉरिटी थी कि वो किंग को डिक्लेयर कर सकता था। द नेक्स्ट पर्सन टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ द स्टेट। An idiot passed by the gate. ये एक और फनी और क्रेजी थिंग हुई कि an idiot passed. The guards stopped him and asked who was to be the king of the state. The idiot replied, a melon. उस idiot से पूछा गया कौन होगा राजा अगला, उसने कहा a melon, एक तरबूज होगा। It was his classical answer. ये उसका चिरपरिचित उत्तर था, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर वो यही देता था। तुम्हारा नाम क्या है? मेलन। तुम कहाँ जा रहे हो? मेलन। ठीक है, ऐसे पूछा गया इस स्टेट का किंग कौन होगा नादा, उसने कहा मेलन, बिकॉज इट वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। ही लाइक्ड द मेलन सो मच। द मिनिस्टर्स एग्रीड टू क्राउन द मेलन। दे सेट इट डाउन ऑन द थ्रोन। थ्रोन में, गद्दी में मेलन को बैठाला गया, एक तरबूज को ला करके, और उसको क्राउंड किया गया पूरे जो है विधि विधान से। This happened many years ago. Now, if anyone asks those people how they came to have a melon as their king, they say that it was the king's own choice. वो उस स्टेट के लोगों से पूछा जाता है कि कैसे एक मेलन राजा बना, तो खुद एक किंग की ही इच्छा थी, right? What he wanted to be, and they had nothing to do with it as long as their own peace and liberty were disturbed, right? वो कुछ नहीं कर सकते थे। Thus the principles of
नॉन इंटरफेरेंस विद इंडिविजुअल फ्रीडम वर वेल एस्टेब्लिश इन दैट स्टेट। जो प्रिंसिपल्स हैं वहां पर इंडिविजुअल व्यक्ति के थे जिसने वहां पर इस्टेब्लिश किया स्टेटमेंट को, और इस तरीके से वह एक मेलन को वहां पर राजा बनने का चांस मिल गया। राइट, एंड दे वुड नॉट क्वेश्चन हिम taking any step as long as left them in peace and liberty and allowed them to carry on their private business without government control. Right? कहा जा सकता है वे किसी भी आकार या धारणा से उनको कोई आपत्ति नहीं थी वहां के लोगों को, बस की बात ये थी कि वहां पीस बनी रहे, वहां फ्रीडम बना रहे, ठीक है, और उनके किसी भी जो है व्यापार में, उनके किसी भी जो है बिजनेस में, व्यक्तिगत किसी राज्य की किसी भी स्टेट का किसी भी किंग का इंटरफियर न रहे। ठीक इस तरीके से वो लोग भी फ्रीडम चाहते थे और एक मेलन को राजा पा करके पूरी तरीके से वहां के लोगों को फ्रीडम मिला। दैट्स ऑल, थैंक यू।